لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر میزائل داغ دیے ہیں۔ دیکھیں حزب اللہ جو ہے اس کو ایران نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور لبنان میں حزب اللہ کی جڑیں ہیں اور اسرائیل کو اس بات کا پتا تھا۔ اسرائیل کافی عرصے سے لبنان کے اوپر بار بار اٹیک کرتا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ اسرائیل خود بہت بری طرح حملوں کی زد میں ہے تو لبنان کی جانب سے حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر میزائل داغے ہیں۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق 6 میزائل آ کر لگے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جو باقی ممالک اس میں آہستہ آہستہ کود رہے ہیں، اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ ایران پر حملے بہت شدت سے ہو رہے ہیں، دوسری جانب ایران بھی میزائلوں کی بارش کر رہا ہے۔ اب کچھ مناظر ایسے دیکھیں ہم نے جو لوگ ویڈیو بنا کے یہ دکھا رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر بعض ٹائم پہ ایسا دکھائی دیا جیسے میزائلوں کی بارش کرتی ہے۔ بہت زیادہ میزائل جا کر گرے ہیں اور جو قطر کے اندر امریکی بیسز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ایرانی میزائل جا کر گرے ہیں، اور کچھ میزائل اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے جو میزائل آ رہے تھے ان کی رفتار اور طرح تھی، وہ دکھائی بھی دے رہے تھے، لیکن اب جو میزائل آ رہے ہیں وہ تو دکھائی بھی نہیں دیتے، بہت رفتار سے آ رہے ہیں۔ ان کا صرف دھماکہ سنائی دیتا ہے اور وہ صرف آواز آتی ہے ان کی۔ تو اب ایران جو ہے وہ ہائپر سونک یا بہت جدید ہتھیار استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ ایران کے پاس ہتھیار ہیں کتنے، اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایران کے پاس کتنے میزائل ہیں اور وہ کتنے دنوں تک ان میزائلوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ ذخیرے کے بارے میں نہ کوئی بھی مستند انفارمیشن نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے جو سورسز ہیں ان کا اندازہ ہے کہ ایران کے پاس 3 سے 5 ہزار میزائل ہیں، اور یہ ایسے میزائل ہیں جو خوفناک میزائل ہیں۔ یعنی اگر وہ روزانہ بھی 100-150 میزائل چلائے، 200 میزائل چلائے تو تب بھی وہ 1 مہینے تک یہ لڑائی لڑ سکتا ہے۔ یعنی 3000 سے لے کر لگ بھگ 5000 تک کے میزائلوں کا ایسٹیمیٹ ہے امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس، جبکہ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی مقدار میں میزائل ہے۔ جو پرانے میزائل ہیں ایران کے پاس جو وہ ہمیشہ سے استعمال کرتا چلا ہے، روایتی میزائل، وہ تو انہوں نے بہت سارے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو جدید میزائل ہیں ان کی گنتی تھوڑی ہے۔ لیکن امریکہ کے اور اسرائیل کے مطابق اور جو کچھ تخمینے عالمی سطح پہ دفاعی اداروں نے اور تنظیموں نے لگائے ہوئے ہیں یا جو انہوں نے سورسز سے انفارمیشن اکٹھی کی ہے، اس میں وہ اگر بہت زیادہ بھی ہیں تو وہ 5000 کہے جاتے ہیں، کچھ سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ 8000 تک ہے۔ تو ایران کافی دیر تک یہ لڑائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس لڑائی کو وقفے کے ساتھ کرے تو وہ کافی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ایران کے بعد سب سے بڑا نقصان پاکستان میں ہوا ہے، وہ کیسے ہوا میں پاکستان کی تفصیلات آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایران اور امریکہ کی لڑائی کے حوالے سے اس وقت تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ لڑائی میں بہت سارے اور ممالک اب کودنا شروع ہو گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ کو اپنی ملٹری بیسز ایران پر حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ اس سے پہلے برطانیہ نے منع کیا تھا، لیکن کیونکہ امریکہ کے جو بھی ہتھیار ایران کی رینج میں ہیں تو ایران لگاتار ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اور شاید اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا امریکہ کو، تو اب برطانوی بیسز کو استعمال کرنا چاہتا ہے امریکہ۔ اس سے ذرا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ بیسز ایران کی رینج سے باہر ہے۔ ایک یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ سائپرس جو ہے وہ ترکی کے پاس ہے اور یونان کے پاس ہے آدھا، اور بیچ میں کچھ ایریا جو ہے وہ برطانیہ کے پاس بھی ہے، اور وہاں پہ برطانیہ کی ملٹری بیس ہے، اس کے اوپر بھی ایران نے میزائل داغا ہے، وہاں پہ بھی حملہ کیا ہے۔ اور فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا ایک مشترکہ بیان بھی آیا ہے، یعنی اب یہ ممالک آہستہ آہستہ اس جنگ کا حصہ بننے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ جو مشترکہ بیان ہے اس میں ان ممالک نے کہا کہ ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف دفاعی کارروائی کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، یعنی ہم بھی ایک عسکری کارروائی کر سکتے ہیں ایران کے خلاف۔ تو فرانس اور جرمنی بھی برطانیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو امریکہ کو آہستہ آہستہ اتحادی مل رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اندر جن ممالک پہ ایران نے جوابی کارروائی کی امریکی اڈوں پر، ان ممالک نے بھی اندیا دیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، تو یہ مزید ممالک اس کے اندر کودتے جا رہے ہیں۔ چائنا اور رشیا وہ بھی سخت بیانات دے رہے ہیں، اور ان کی جانب سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نہ صرف امریکہ کی بلکہ اسرائیل کی مذمت کی گئی ہے، اور ایران کے اوپر حملوں کو غیر قانونی اور بلا جواز قرار دیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے شدید ان چیزوں کی مذمت کی ہے اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے اوپر زوردار طریقے سے آواز اٹھائی ہے۔ ناظرین، ہمارے جرنیلوں کو، ڈکٹیٹرز کو ہر دور میں کوئی نہ کوئی صحافی میسر رہتے ہیں، یہ ایک مخصوص تعداد ہے اور وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ کچھ ہمارے ایسے بزرگ صحافی ہیں جو ہر دور میں ہر ڈکٹیٹر کو میسر رہے اور وہ انہیں اچھے مشورے بھی دیتے رہے اور ان کی تعریفیں بھی کرتے رہے، اور ان کے بہاف پہ وہ دھمکیاں بھی لگاتے رہے سیاسی جماعتوں کو اور سیاستدانوں کو۔ ابھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پی ایم ایل این کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اب آپ کا بوجھ مزید نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اچھا خاصا امن معاہدہ ہو رہا تھا اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی،
किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सारे मामले को खराब कर दिया, आसिम मुनीर साहब की मेहनत कैसे जाया हो गई। नाज़रीन, ये तो जो जिस किस्म की ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो तो फतह का ऐलान कर रहे हैं और उनके जो 10 नुकात हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो 10 नुकात हैं क्या, इनमें से कुछ मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए। ये दुनिया भर के अखबारात के अंदर छप चुके हैं अब तक, और मैंने ये कहाँ पे पढ़े, मैंने गल्फ न्यूज में पढ़े हैं, टाइम्स नाउ में पढ़े हैं, मिरर में पढ़े हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। रदी ताहिर साहब ने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया है ये ईरान से जुड़े हुए मामलात को जंग के दिनों में भी। तो उन्होंने जो रिपोर्ट की है वो बताते हैं कि दोबारा हमला ना करने का वादा लिया उन्होंने। नंबर 2, आबनाए हुर्मत पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा, यूरेनियम अफसूदगी को तस्लीम किया जाएगा कि ईरान अपनी जरूरत के मुताबिक यूरेनियम को अफसूदा कर सकता है, और तमाम बुनियादी पाबंदियों का जो ईरान के ऊपर पाबंदियां वो खात्मा किया जाएगा, तमाम सानवी पाबंदियों का भी खात्मा किया जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तमाम करारदादों का खात्मा किया जाएगा जो ईरान के खिलाफ थी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों का खात्मा, ईरान को मुआवजे की अदायगी की जाएगी, खित्ते से अमरीकी जंगी अफवाज का इनखला होगा, तमाम महाजों पर जंग का खात्मा बशमूल लबनान में फौरी जंग बंदी, और जो आबनाए हुर्मत है उसके हवाले से वो ईरान का कंट्रोल रहेगा, ईरान उसका मैकेनिज्म बनाएगा और उससे जो ईरान पैसा हासिल करेगा वो पैसा खर्च किया जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो तबाही हुई है उसको ठीक करने के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा वो मांगते हैं कि जो नुकसान किया उसकी भरपाई भी की जाए। ये है जनाब ईरान के मुतालबात। अब इसे अमरीकी मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि ये बड़े तज़हीक आमेज मुतालबात है, जिल्लत आमेज, यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने वही मुतालबात जो ईरान ने पहले रखे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें मानने पर मजबूर क्यों हो गया, ये है जनाब सबसे बड़ा सवाल। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ क्या? लेकिन पहले ये शहबाज शरीफ साहब के पास जब ट्वीट आया तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो ये कहानी क्या है? अब जरा मैं आपको एक कहानी की तरह बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन की डेडलाइन दी और इन 10 दिनों में पूरी कोशिश की कि अरब ममालिक पाकिस्तान को लेकर इस लड़ाई में उतर जाएं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने शिया सुन्नी फिरका वारियत को पसे पुष्ट डालते हुए इस बात को नामुमकिन बना दिया और पाकिस्तान में एक मिसाली भाईचारा देखने में आया। हत्ता की कोशिश की गई कुछ ऐसे कलदम तंजीमों के बंदों को उतार कर के हालात खराब हो जाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, समझदारी का मुजाहरा किया और फिरका वारियत से गुरेज किया, जो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तानियों ने कैटेगोरिकली कह दिया, यानी फील्ड मार्शल ने तो बुला के मौलवियों को यह तक कह दिया था कि जिसको ईरान में जाना है या पसंद है वो उधर ही चला जाए। ये मामला खराब हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो कंसिस्टेंटली अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे। ये जो सुलह वाला दिन है, यानी ये पूरा दिन कैसा गुजरा मंगल का, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आगाह कर देता हूं। हुआ ये मंगल के दिन में कि अचानक से कुछ ऑर्डर आते हैं पाकिस्तान के मीडिया को। ये 4 किस्म के ऑर्डर हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में आम लोगों को दिए गए और पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया को दिए गए। और ईरानी सहाफियों के बारे में ये कहा गया कि अब ईरानी सहाफियों को आप टीवी चैनल्स पे लेने से गुरेज करें। इसका शिकवा कुछ ईरानी सहाफियों ने भी किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर हमारे इंटरव्यूज थे, हमें जाना था, लेकिन अचानक हमें कैंसिल कर दिया गया। यानी एक तो एस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर आया कि आपने ईरानी सहाफियों को नहीं लेना, दूसरा एक ये ऑर्डर आया कि आप अब ईरान की मजम्मत करें कि जो उसने सऊदी अरब के ऊपर वापस अटैक किया, तो उसकी मजम्मत के लिए भी अहकामात आ गए। तो कुछ ऐसी चीजें पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी जिससे तासुर मिल रहा था कि पाकिस्तान अब पूरी साइड लेने वाला है और जैसे ही अमेरिका अटैक करेगा पाकिस्तान पैंतरा बदल जाएगा, ऐसा लग रहा था। क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मीडिया को इससे मिलते जुलते कुछ अहकामात जारी कर रही थी। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सारा गेम पलट दिया और एक मैसेज आता है शहबाज शरीफ के पास। और मैसेज क्या आता है? शहबाज शरीफ का जो पैगाम मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये पैगाम इस तरीके से नहीं था। इस पैगाम के शुरू में एक और चीज भी है और ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ये दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा, और ये भी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर से किसी सरकारी महकमे ने भी नहीं लिखा। मैं अच्छी तरह जानता हूं जो सरकारी लैंग्वेज है, मैं जर्नलिस्ट हूं, सारी जिंदगी हमने ये फाइलें पढ़ी हैं, सारी जिंदगी हमने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता।
इमरान खान की फैमिली, उनकी बहनें दोबारा पहुंचेंगे, वर्कर्स भी जाएंगे, बड़ी तादाद में तो नहीं जाते, यानी उनकी बहनें कहती हैं 10,000 लोग आने चाहिए कम से कम। 10,000 का फिगर कुछ है ही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन 10,000 लोग ले जाने के लिए लीडरशिप को संजीदा होना पड़ेगा, वो नहीं लेकर आते और उनको मना भी किया जाता है और वो जोर भी नहीं लगाते। उनका मेरे ख्याल में जोर इस बात पे है कि किसी तरह इमरान खान की कोई डील हो जाए, कोई बात ऐसी बन जाए जिसमें इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाएं या कोई मुलाकातें वगैरह खुल जाए। बजट के ऊपर भी उन्होंने कोशिश किया ब्लैकमेल करने का कि बजट के जरिए से दबाव डाल दें कुछ, वो भी बात नहीं बनी तो बजट भी पास हो गया। अब वो कटौती के मामले को लेकर बैठे कि अब मुलाकात करवाएंगे तो हम करेंगे। तो आज ये मुलाकात ना करवाने का दिन है, नॉर्मली तो यही होता है मंगल को। देखते हैं कि आज के दिन में डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, हम आपको रिपोर्ट करेंगे शाम के वीलॉग में। एक और इसके अंदर खबर है मेरे पास, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना बैकडोर चैनल कुछ राब्ते हुए हैं और इसको ना बहुत सारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। मोहसिन नकवी के जरिए से बातचीत होती है, सुहेल अफरीदी के साथ बातचीत। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि सुहेल अफरीदी मोहसिन नकवी से मिले और इमरान खान की बात ना करे, मुमकिन ही नहीं है, या मोहसिन नकवी बात ना करे, ये हो ही नहीं सकता। पीटीआई के लोग जब भी हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से किसी से भी बात करेंगे या उनके नुमाइंदों से बात करेंगे तो इमरान खान की बात करेंगे ही करेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान की बात ना हो, वो तो दिन रात होती है। पाकिस्तान का कोई टॉक शो भी मुकम्मल नहीं होता इमरान खान की बात के बगैर। तो अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एक वादा किया गया था वो ये था कि जल्द इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। खास तौर पे जो इसमें एक टाइम ड्यूरेशन था ना, वो था जून का, कि जून में सुहेल अफरीदी को मुलाकात मिल जाएगी या सुहेल अफरीदी के किसी नुमाइंदे को मुलाकात मिल जाएगी और इमरान खान की फैमिली को भी मुलाकात करवाई जाएगी और इलाज के हवाले से भी यकीनदानी करवाई गई थी। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर धोखा मिलता है जैसे कि हमेशा मिलता है, तो तहरीक इंसाफ ने इस बात पे गौर शुरू कर दिया है कि वो अब एक कॉल देने वाले हैं। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो तहरीक इंसाफ जुलाई में एक कॉल दे सकती है, जुलाई के शुरू में 8 अगस्त 2026 के हवाले से, कि इमरान खान साहब की कैद को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे और 8 अगस्त को करना क्या है इसके ऊपर मुशावरत हो रही है। अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सुहेल अफरीदी को एक बड़ा एहतजाज लीड करना पड़ेगा और ये मुल्क गिर एहतजाज होगा। हो सकता है कि कोई लॉन्ग मार्च अनाउंस किया जाए कि पूरे मुल्क से लोग जो है वो अडियाला की तरफ आएंगे या इस्लामाबाद आएंगे, या हो सकता है पूरे मुल्क के अंदर शटर डाउन कॉल या कोई बहुत बड़ा एहतजाज अनाउंस किया जाए और वो लिंगर ऑन किया जाए, मुल्क भर में धरने दिए जाए या स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया जाए, कुछ भी किया जाए। पीटीआई को ये बात समझ आ रही है कि अगर जून में उनको दोबारा धोखा दिया जाता है तो फिर उनके पास ऑप्शन कोई नहीं। और ऐसे में देखें सुहेल अफरीदी की हुकूमत भी गिर सकती है, ये नहीं है कि सुहेल अफरीदी की हुकूमत कायम रहेगी अगर वो एहतजाज की पॉलिसी में जाएंगे। बहुत मुमकिन है कि इमरजेंसी लगा दी जाए, उनकी हुकूमत गिरा दी जाए, लेकिन उसका उनको अल्टीमेटली फायदा ही होगा। तहरीक इंसाफ जो है वो उसको पॉलिटिकली इसका फायदा होगा। ये हमेशा फस्तायत रहती नहीं है, ये डिक्टेटर हमेशा बैठे नहीं रहते, एक दिन चले जाते हैं और जिन लोगों को ये ज्यादा मारते हैं, जितना ज्यादा मारते हैं उतना ज्यादा वो लोग ताकत के साथ वापस आते हैं और आने वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भुगतना पड़ता है। यानी आज जो अफसरान बेचारे मेजर जनरल या ब्रिगेडियर हैं वो कल भुगत रहे होंगे जो कुछ आज के सीनियर अफसरान कर रहे हैं, तो उन्हें कल भुगतना पड़ेगा, इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी अनाउंसमेंट करने की तैयारी कर रही है। आइंदा चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा कि वो अनाउंसमेंट किस नौयत की होगी। एजाज चौधरी साहब जिन्हें एक मरतबा फिर सजा सुनाई गई है, 250 साल से ऊपर सजा हो गई एजाज चौधरी साहब, अंदाजा करें आप। एक सेनेटर के तौर पे उनको पकड़ा गया था, एक मरतबा भी प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद करके उनको सेनेट में नहीं लाया गया, बार बार उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए, फिर उनकी सीट के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब को बाद में सेनेटर बना दिया गया। ये हम सबने होते हुए देखा। तो अब मामला ये है कि वो एक मरतबा फिर बीमार होकर अस्पताल चले गए। एजाज चौधरी बड़े लंबे अरसे से बीमार चल रहे हैं, लेकिन वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। एजाज चौधरी ना ही माफी मांगने के लिए तैयार है और ना ही वो इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। तो वो अब इस लड़ाई को जो है ना बड़े इत्मीनान के साथ लड़ रहे हैं बीमार होने के बावजूद। यास्मीन राशिद बीमार हैं, उमर चीमा फ्रोजन शोल्डर का उनका बड़ा सीरियस इशू है और इसमें बहुत तकलीफ होती है, इसके बावजूद वो मुकाबला कर रहे हैं। महमूद रशीद साहब को मैं जेल में मिला था, वो शदीद तकलीफ में थे लेकिन वो बड़े हौसले में थे, बल्कि वो मुझे कह रहे थे कि इमरान साहब आपने घबराना नहीं।